Welcome to Lehes Tarot and Beyond. This is going to be a general reading for all Aquarius signs. It's going to be a general reading, so it may or may not resonate. Just keep what resonates and let go of the rest. If you'd like personal readings for tarot or Akashic, you can find the details for the same in the description box below. Let's see the messages coming through for the Aquarius collective. We'll see the recent past, current energies and the future energies. For the recent past, for the collective, it seems कि things were very happy, in a very happy place, lots of warmth, lots of brightness, अंदर से जो एक खुशी महसूस होती है, that is the energy जो can be seen over here. Very high, very warm energies. We will clarify these further. Please give a card for current energies. In the current energies, there's some kind of pain that the collective is going through, some kind of disappointment kind of energies. Please clarify the near future. Near future has good energies that you will come back up, you will manage through this pain that is there currently. But somewhere it is also showing that completely you may not manage it. It's like on the outside surface level you may show that you are very happy, but somewhere on the inside उसके parts रहेंगे, थोड़ा पेन अभी भी रहेगा अंदर की तरफ, बट आप उसको छुपा के रखेंगे कहीं ना कहीं. Recent past, please clarify the sun card in the recent past. In the recent past, it's showing कि you were very aligned. आपका जो आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो आप फंक्शन कर रहे थे, जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड होता है, अपने इंट्यूशन के बेस पे ही यू वर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजंस. यू वर वेरी वेल अलाइंड विद योर your energies within. Whatever efforts, whatever hard work you were putting in, you were putting it in from a very balanced place, very calm, very collected type of place में से you were putting all of the efforts that you were putting. They were very high energies, very hopeful energies, inspiring energies, balanced energies, lots of calm and collected एनर्जी बहुत थी. सोच समझ के सारे स्टेप्स लेना, जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना, बहुत सोच के अच्छी से अंदर से इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हुए टेकिंग ऑल द स्टेप्स. वेरी हाई एनर्जीज, पॉजिटिव हाई एनर्जीज. लेट्स सी 5 of cups in the current energies. In the current energies, it shows that you are in pain. It's like it's not the pain that something you're feeling currently. It's pain coming from somewhere from the past, but now that cycle is coming to a close. But वो होता है ना, वी हैव लेड सच अ डिफ़िकल्ट लाइफ, इतने सारे स्ट्रगल्स देखते हैं, एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं मेमोरीज, उनकी वो जो फीलिंग्स होती हैं वो कहीं ना कहीं अंदर रह जाती हैं. दे गेट ट्रैप्ड इन आर cells, in our memory, mind में. Although the chapter is closed, but you are still feeling those memories, you are still feeling those feelings कि it was so hard, it was so difficult, that everything जिसमें से निकले थे. तो वो जो एक फीलिंग रहती है ना, जैसे अभी आराम से बैठे हैं, वी आर ऑल हैप्पी एंड चिल्ड एंड अच्छा सा एक एटमॉस्फेयर है, बट अंदर एक फीलिंग रहती है कंटिन्यूस कि बड़े मुश्किलों के बाद यहाँ पे हम पहुँचे हैं, बड़े मेहनत के बाद, बड़े स्ट्रगल के बाद यहाँ हम पहुँचे हैं. सो कहीं ना कहीं यू आर फोकसिंग मोर ऑन दैट फीलिंग rather than staying in the present moment, that yes, you have reached. जिस चीज़ के लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, जहाँ पे पहुँचने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे, यू हैव फाइनली रीच देयर. द स्ट्रगल टाइम्स, द डिफ़िकल्ट टाइम्स, एवरीथिंग इज़ ओवर. You have reached that place where you wanted to reach, that new beginning की तरफ that you were trying to reach, it's here.
but your focus is not on it. Your focus is on the struggles that you went through in the past, and we can only focus on one thing at a time. Either we can focus on the past and the struggles and the difficulties that we have faced, or we can be happy in the current moment that yes, we achieved all that we wanted to, rather than focusing कि अचीव किया तो लेकिन कितनी स्ट्रगल रही. स्ट्रगल कोई बात नहीं, बट अचीव तो किया. कितने सारे लोग स्ट्रगल में ही रह जाते, अचीव ही नहीं कर पाते. बट आपने अचीव की वो न्यू बिगनिंग, बहुत हार्श एनर्जीज के साथ की, बट की. बट आपके पास्ट में एनर्जीज में ऑल्सो इट कैन बी सीन दैट एनर्जीज आपकी अच्छी थी, आपके पास सपोर्ट बहुत था, एंड यू वर मेकिंग यूज ऑफ दैट सपोर्ट ऑल्सो. सो आपकी जो जर्नी है कहीं ना कहीं, नॉट टू पुल डाउन एनीबडी, बट कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में बहुत हेल्प रही है आपकी. इट इज़ बिन अ वेरी काइंड ऑफ एन एनर्जी, काइंड ऑफ अ जर्नी जहाँ पे आपको बहुत एफर्ट्स डाल के चीज़ें मिली हों. कोई भी चीज़ आसानी से ना मिली हो कि एक बार आपने किया और आपको मिल गया. मल्टीपल एफर्ट्स के बाद, डेडिकेशन के साथ काम करने पर मिला है आपको जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं. सो दैट इज़ समथिंग जिस चीज़ ने आपको बहुत ड्रेन आउट कर दिया है कि इतना एफर्ट, इतना हार्डवर्क, ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं रहा है जो अभी एनर्जी आ रही है कि ऐसा दिन हो कि आपको मतलब यू जस्ट नॉट कंपेयरिंग योर पेन टू एनीबडी. जो पेन होता है वो आपका पेन होता है, बट समटाइम्स it gets really difficult for people to do anything in life. But with the past energies I can see that happy energies रही हैं आपकी तरफ. So just try and come out of the energies कि आप harshness से निकले हो और अब पहुंच गए हो. थोड़ा उस साइड पे फोकस किए करो कि आप पहुंच गए हो. The journey is complete. Now it's time for you to enjoy the journey. थोड़ा अपने emotions में balance लेके आए. जो new beginning आई है आपके पास, उस पे फोकस करें. डोंट फोकस ऑन द थिंग्स दैट हैव गॉन, फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर देयर नाउ. फिर आपके पास वो चीज़ें और आएंगी. अगर आप अपने स्ट्रगल पे ही फोकस करते रहे कि कितना डिफ़िकल्ट टाइम से यहाँ पे पहुँचे, तो वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल और लेके आ रहे हो अपनी लाइफ में. जिसको हम बुलाएंगे वही आएगा. तो आप अच्छी एनर्जीज को बुलाइए कि हाँ, इतना स्ट्रगल के बाद पहुँचे लेकिन पहुँच गए, एंड नाउ दिस इज़ इट. ख़त्म हो गया सारा स्ट्रगल, अभी यही है. तो फिर और अच्छी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में. लेट्स क्लैरिफाई द 9 ऑफ कप्स इन द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में भी है कि आप थोड़ा सा निकलना शुरू किए हैं फ्रॉम दैट पेन, फ्रॉम दैट फीलिंग जो आप करंटली जो आप फील कर रहे हो. इन द नियर फ्यूचर यू आर कमिंग आउट ऑफ द पेन. यू हैव स्टार्टेड फीलिंग दैट हैप्पीनेस जो आपके अराउंड है, आप फील करना शुरू कर रहे हो. बट थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा अंदर अभी भी वो एक स्टक वाली एक इनसिक्योरिटी फीलिंग है आप में कि ये चले ना जाए चीज़. समटाइम्स होता है कि after a lot of struggle, when we achieve something, when we reach that good life that we have been working so hard for, when we finally get that life, when we finally receive it, थोड़ा सा डर लगता है उसको fully accept करने के लिए कि it will go away. So don't have that fear. Don't feel insecure that it will go away because you have earned it, you deserve it, इसलिए आपको मिला है. So बी हैप्पी इन दोज एनर्जीज. ये ऑफर, ये गुड लाइफ जो आई है आपके मेहनत से आई है, एंड इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड दैट हैज़ बीन गिवन टू यू बाय द यूनिवर्स, बाय भगवान जी. दिस रिवॉर्ड हैज़ बीन गिवन टू यू. सो डोंट फील इनसिक्योर. भगवान जी कुछ देते हैं तो उनको पता है वॉट ही इज़ डूइंग. सो डोंट फील इनसिक्योर अबाउट इट. विद अ वेरी होल हार्टेड open heart, accept these energies and don't feel the insecurity of losing it somewhere in the future. It's always going to be with you, but if you continue to call insecurity of losing this, then you will end up losing it. So आप जिसको बुलाओगे वही आएगा आपके पास. Let's pull overall guidance for you. The overall guidance is कि
बी डिटर्मिन्ड, कॉन्फिडेंट रहिए। जो आपको अभी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ लोगों के बन चुकी है, कुछ लोगों के बनना शुरू हो रही है, तो बट कॉन्फिडेंट रहिए कि येस नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड, अब हम लाइफ में आगे ही जाएंगे। देर इज़ नो लुकिंग बैक, दो स्ट्रगल्स आर नॉट गोइंग टू कम बैक। हियर एंड देयर छोटे मोटे कन्फ्यूजन्स, छोटे मोटे इनडिसाइसिव मोमेंट्स तो आते ही हैं, दैट इज़, वो नहीं आएंगे तो हाउ विल वी ग्रो इन लाइफ एज अ पर्सन, वो तो आएंगे, बट कोई भी हार्श स्ट्रगल्स नहीं आएंगे आपकी लाइफ में। यू हैव टू सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड भगवान जी कि वॉट एवर इज कमिंग योर वे, आप अच्छी चीज़ें आपकी आ रही हैं लाइफ में, एंड स्टेप आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन ऑफ योर्स। कि अभी तक आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो तो कहीं ना बॉडी गोज इनटू सर्वाइवल मोड, कि उसको एंजॉय ही नहीं करना आता। इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना सोच के करना पड़ता है, इतना टेंशन रहता है माइंड में कि हर वक्त एक अलर्ट मोड पे रहने लग जाता है ब्रेन। तो जब एक्चुअली लाइफ में चीज़ें सेटल होने लग जाएं तो हमें वो चीज़ें एक्सेप्ट करने में, थोड़ा रेस्ट करने में, थोड़ा चिल करने में थोड़ा सी परेशानी रहती है। सो कम आउट ऑफ दैट फेज, थोड़ा सा वो गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। जो चीज़ें पसंद आती हैं करनी, गार्डनिंग इतने सालों से करनी थी लेकिन कर नहीं पाए, वो कीजिए। 9 घंटे सो जाइए कि आज तो मैं सोऊंगी या सोऊंगा बस, तो आप सोइए। डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आप करते व्हेन यू वुड बी लीडिंग अ वेरी ईजी कंफर्टेबल लाइफ। वो वाली लाइफ आप अब जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छी कंफर्टेबल लाइफ आ चुकी है। बस आपको उसको उस तरीके से रहना शुरू करना है, अपने आप को उस अलाइनमेंट में लेके आना है, क्योंकि आपकी लाइफ तो बेटर हो गई है, एनर्जेटिकली बेटर हो गई है। अभी एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपको उस लाइफ की तरह रहना शुरू करना है। जैसे आपके पास फाइनेंशियली पहले परेशानी रहती थी, अब फाइनेंसेस बेटर होने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा कीजिए। थोड़ा सा बाहर का खाना है आप खाइए। थोड़ा सा आपको अपने ऊपर स्पेंड करना है, कपड़े खरीदने हैं, कोई चीज़ खरीदने हैं, आप खर्चा कीजिए। पहले आप बचाते होंगे कि नहीं ये पैसे वहाँ पे काम आ जाएंगे तो मैं नहीं खर्चा करती या करूँगा, बट गो फर्दर, फील फ्री। अपने दिल को थोड़ा सा खुशी दीजिए, थोड़ा सा वो जो एक अच्छा एनर्जी आई है ना, थोड़ा सा उसको धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। इस इनसिक्योरिटी में वो टाइम मत निकालिए कि चले जाएगा मेरे पास से, ये तो थोड़े टाइम की खुशी है। उसमें एनर्जी डालने से अपनी एनर्जी उसमें डालें कि अब मैं इसको जीना शुरू करूं, अच्छी चीज़ें आ गई हैं, स्ट्रगल इज ओवर, नाउ लेट मी लिव दिस गुड लाइफ, बिकॉज भगवान जी हैज़ गिवन मी दिस आफ्टर सीइंग ऑल द एफर्ट एंड डेडिकेशन, सो इट्स कम टू यू, हैव सम faith. Okay, so those are all the messages coming through for the Aquarius collective right now, and I will see you in the next video.